आज पढ़ा लेते हैं, 2-3 दिन हो गए ना, नोट्स में फिर लिखवा दूंगी, कोई बात नहीं है। ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस में आपको बताया था, पहला स्टेप था एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। गेट द स्क्रीन, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। उसमें आपको 2 एनालिसिस करने थे, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। आपको उसमें 2 तरह के एनालिसिस करने थे, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। Workload analysis matlab the number and type of people required, and workforce analysis means the number and type of people available in the organization. Okay, and after comparing the two, you can have the correct estimation of the required manpower and of what type in the organization. Hence, it completes the step of establishing manpower requirements. The second step was recruitment. Uska matlab tha, it was a process of searching for prospective candidates and stimulating them, encouraging them to apply for the job. ठीक है, it refers to inviting the applicants through suitable resources and encouraging them to apply for the job. The third step was selection. Under this process, the best candidate was selected out of the large number of applications received. Okay? It enhances the motivation and prestige of the employee, I told you that day. Then comes placement and orientation. Placement means placing the person on the job for which he has been selected. That means introducing him with the work content. Okay? And orientations means making the person familiar with his colleagues, with his boss, with his subordinates, and with the rules and regulations of the organization. This is called orientation. The next is training. Training means enhancing and improving the skills to improve the performance. Okay, this is called training. Development, it refers to the growth opportunities. Okay, providing opportunities to them for their future growth. Appraisal, performance appraisal. Performance appraisal means evaluation of the current performance. That means your actual work will be compared with the task assigned to you. कि जितना काम आपने दिया गया था आपको और जितना काम आपने एक्चुअली किया है वो बराबर है या नहीं, कम तो नहीं है, ज्यादा है तो भी आपकी कम है तो भी आप से पूछा जाएगा, बराबर है तो इट्स ओके, अच्छा है तो आपको अप्रिशिएट, ज्यादा है मतलब जितना दिया गया था उससे ज्यादा आपने काम कर लिया तो अप्रिसिएशन मिलेगी. दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल. नेक्स्ट स्टेप इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. ठीक है, प्रमोशन करियर प्लानिंग इज द स्टेप वेयर द एम्प्लॉइज गेट्स बेटर सैलरी, स्टेटस, पोजीशन. ठीक है, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली आपका जो प्रोबेशन पीरियड आप खत्म हो रहा है एंड इट टेक्स यू टू अ हायर लेवल, 1 level हायर. ठीक है, एंड देन कंपनसेशन मीन्स डिसाइडिंग एंड मेकिंग ऑफ पेमेंट in the form of wages and salary to the selected candidate. Now he's no more a candidate, he'll be called as employee of the organization. ठीक है, समझ में आ गया ये सबको? स्टेप्स तो समझ में, स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस सबको समझ में आ गए थे? हाँ जी, किसी को दिक्कत तो नहीं थी स्टाफिंग प्रोसेस के स्टेप्स में? आवाज नहीं आ रही मुझे. हाँ, No, ma'am. Okay, let us start with the sources of recruitment. ठीक है, हमने देखा था कि स्टाफिंग प्रोसेस में 3 मेन कंपोनेंट्स थे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग. ठीक है, तो हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे. 3 थे ना, पहले रिक्रूटमेंट, सेकंड स्टेप था आपका रिक्रूटमेंट, थर्ड स्टेप था सिलेक्शन एंड उसके बाद वाला स्टेप था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं रिक्रूटमेंट से. रिक्रूटमेंट क्या था? इट वाज द मेथड ऑफ inviting applications from the candidates. So let us talk about the sources of recruitment. There are 2 sources of recruitment. पहला सोर्स है इंटरनल सोर्स और दूसरा सोर्स है एक्सटर्नल सोर्स. ठीक है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब है द inviting the applications from the people who are already available in the organization.
जो लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपके पास, उन्हीं में से आपने एप्लीकेशंस इनवाइट की टू फिल अप द वेकेंट पोजीशंस। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? जब आपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को बुलाया, टू you attracted them, you stimulated them to apply for the job in your organization. अंदर के ही लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो तो वो है आपका एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, लेट मी चेक इसमें आपको कोई डिफरेंट स्लाइड जाए तो 1 मिनट रुक जाना बेटा। कैसी हिस्ट्री मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन नजर आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। Sources of recruitment, okay, we were talking about the sources of recruitment. There are two sources, internal and external. internal कौन से थे? जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ही आप इनवाइट करते हो खाली पड़ी हुई वेकेंट पोजीशंस को भरने के लिए। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, जब अंदर से ही एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हो खाली पड़ी जॉब को वेकेंट करने के लिए, तो कोई भी एम्प्लॉय कब उसमें आपको अप्लाई करना चाहेगा? बताइए, यूजिंग योर कॉमन सेंस, टेल मी द आंसर। वो ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अब आप उसे फिर से इनवाइट कर रहे हो कि आइए हमारी कंपनी में अप्लाई कीजिए, तो वो क्यों अप्लाई करना चाहेगा? बता सकता है कोई? कब अप्लाई करेगा, क्यों करेगा अप्लाई? हम जब उसे हाईएस्ट सैलरी मिले, यस, प्रमोशन हो गई। हाँ, तो इसका मतलब इंटरनल सोर्सेस का जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो दो कौन कौन से हैं? प्रमोशन और ट्रांसफर। ठीक है, एक तो आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज में से जब आप स्टिमुलेट करते हो, एनकरेज करते हो, एक तो प्रमोशन के लिए करते हो या फिर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेजने के लिए करते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है देयर आर टू सोर्सेज ऑफ recruitment. There are two sources of internal recruitment. One is promotion. Promotion is the vertical shifting of employee from a lower level to a higher level with a substantial increase in the responsibility, status, as well as the pay, the wages and salaries of the employee. Vertical shifting होती है नीचे से ऊपर, upward vertical shifting of the existing employee with a considerable increase in the responsibility. Responsibility भी बढ़ती है, status भी बढ़ता है, उसकी सैलरी भी बढ़ती है। जब इस तरह से आपको प्रमोट शिफ्ट किया जाता है तो ये कहलाता है प्रमोशन। एंड ट्रांसफर इज अ हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय विदाउट एनी इंक्रीज इन द स्टेटस एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल सकती हैं ट्रांसफर होने में, लेकिन आपका स्टेटस नहीं बदलेगा, यानी कि अथॉरिटीज वही रहेंगी, पोजीशन वही रहेगी, सैलरी वही रहेगी। एंड इट इज अ हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, अपवर्ड शिफ्टिंग नहीं है, ये साइडवर्ड शिफ्टिंग है। ठीक है, तो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला है प्रमोशन जहां अपवर्ड शिफ्टिंग है, vertical shifting है with a considerable increase in your salary as well as your status as well as your responsibilities, whereas transfer is a horizontal shifting without any change in the without any change in the status and salary of the employee. Responsibility बदल सकती है। ठीक है, am I clear with the two sources of internal recruitment? Yes ma'am. समझ में आ गया सबको? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. अब आप नोट्स जो अब सुन लो, पहले जो आप होमवर्क, अबाउट द होमवर्क
क्या आपको एक प्रोसेस लिखने में, और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट लिखने हैं, इंटरनल नहीं लिखने हैं। सिर्फ 4 के 2 सोर्सेज हैं, लेकिन एक्सटर्नल, ठीक है मैम आपकी आपकी वॉइस आवाज कट रही है। बेटा, 2 आपको यू हैव वेट अ मिनट। अब सबको आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, यस, वी वर टॉकिंग अबाउट 2 क्वेश्चंस यू हैव टू डू। एक तो आपको करना है स्टाफिंग प्रोसेस अपनी कॉपी में जो करना है, दूसरा आपको करना है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एम आई क्लियर? यस मैम। अभी हमने जो हमने इंटरनल 2 सोर्सेज बताए वो सबको समझ में आ गए? यस Internal sources. Okay. Yes. Now let us come to the advantages and disadvantages of internal sources of recruitment. Advantages क्या है? पहला, motivation to employees to improve their performance. ठीक है, प्रमोशन से क्या मिलता है? जो करंट एम्प्लॉइज हैं, it helps to enhance their motivation, their satisfaction, their loyalty, their devotion towards the organization. Because being promoted to a higher level, सिर्फ एक का प्रमोशन, यानी कि आपका प्रमोशन हुआ, आप अपने से ऊपर पहुंच गए, आपकी पोस्ट खाली हुई, नीचे वाला आपके पर पहुंच गया, उसकी पोस्ट खाली हुई, उससे नीचे वाला उसकी पोस्ट पर पहुंच गया। It leads to a chain of promotions, which increases the motivation and morale of the employees. So it helps to improve their performance. दूसरा, internal sources less cheaper है, expensive नहीं है, क्योंकि बड़े सारे steps हैं जो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं। ठीक है। तीसरा, ये प्रोसेस सिंपल प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज वेरी सिंपल एंड रिलायबल, एज यू ऑलरेडी नो द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और आप उनकी वो ऑलरेडी इवेल्युएटेड भी है। ठीक है। अगला है ट्रांसफर को यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह पर उसे ट्रांसफर करते हो, दूसरी से तीसरी जगह पे करते हो, ताकि वो हर तरह की जॉब को परफॉर्म करना सीख जाए, एंड नाउ ही विल बी मोर एलिजिबल फॉर बीइंग प्रमोटेड टू हायर पोजीशन। ठीक है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है। और एक और फायदा है इंटरनल सोर्सेस का, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द ओवर एंड अंडर स्टाफिंग। ट्रांसफर से क्या है, आप ओवर स्टाफ हैं तो आप अपने एम्प्लॉय को कहीं और भेज सकते हैं, अंडर स्टाफ हैं तो कहीं और का एम्प्लॉय आपके यहाँ ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेस। इट इज नॉट सुटेबल फॉर अ न्यू एंटरप्राइज। भाई नई एंटरप्राइज है तो वो इंटरनल सोर्सेज का तो यूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई इंटरनल एम्प्लॉय है ही नहीं, उसको तो रिलाई करना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्स पर। दूसरी लिमिटेशन है लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट को आपके पास जगह नहीं मिलती। न्यू एजुकेशन, न्यू ब्लड, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू माइंड्स, उनको आप मौका नहीं देते, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्स में से ही आप अपने नए एम्प्लॉयज को चुन रहे हैं। फिर लैक ऑफ कंपटीशन, एम्प्लॉयज को पता ही है मेरे को तो प्रमोशन मिलनी है, तो वो थोड़ा लथार्जिक हो जाता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं होती। आपको लोग आपके बारे में पहले से ही जानते हैं कि आप कैसे हो, तो आपकी स्पिरिट ऑफ कंपटीशन खत्म हो जाती है। प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स की वजह से, और आप आलसी हो जाते हैं ये सोच के कि मुझे तो कुछ दिन बाद क्या करूंगा, काम करके थोड़े दिन बाद तो मुझे प्रमोशन मिलना ही है। ठीक है। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ internal sources of recruitment. ठीक है। Kaif, I think you should stop the recording. Let's start with